Hello students, welcome to all in the social science class. Dear students, in previous module we have studied that after the fall of Delhi Sultanate declined and whole empire was divided into small independent kingdoms. So, such conditions gave chance to invade foreigners in India. One such Muslim emperor was Babur. He attacked India in 16th century and established Mughal Empire. So in this module today we are going to discuss about the Mughal Empire. Dear students, as I have told you that Babur attacked India in the 16th century. At that time the whole country was divided into numerous small states. The rulers of these small states continued to fight with each other, and conditions were like that India was an easy prey for any invader. These small kingdoms were not able to stand up against any foreign attack. As we have studied in the chapter Delhi Sultanate, I had told you that Delhi had lost its glory under Ibrahim Lodi. His personal officials opposed him and invited Babur to attack India. The situation in independent states like Punjab, Gujarat, Bengal, Malwa, Rajputana and Kashmir were very bad. In these states, there was no law and order. Means 16th सेंचुरी में बाबर ने इंडिया पर अटैक किया और उस टाइम पूरी कंट्री कई स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड थी. इन स्मॉल किंगडम्स के रूलर्स आपस में लड़ते रहते थे और कंडीशन ऐसी थी कि इंडिया किसी भी आक्रमणकारी के लिए एक आसान सा शिकार था. ये स्मॉल किंगडम्स किसी भी फॉरेन अटैक के अगेंस्ट खड़े होने में सक्षम नहीं थे. स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि इब्राहिम लोदी के टाइम दिल्ली अपनी ग्लोरी यानी अपना यश खो चुकी थी. उसके पर्सनल ऑफिसर्स ने उनको अपोज किया और बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए इनवाइट किया. उस टाइम पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपुताना और कश्मीर जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी और इन स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी. डियर स्टूडेंट्स, due to the widespread discontent and because of the situation of disorder, the local rulers became unpopular among the people. Taking advantages of this situation, Babur attacked India and led the foundation of Mughal Empire in India. After Babur, his son Humayun got throne, but the real glory of the Mughal Empire was at the peak when Humayun's son Akbar became the Mughal ruler. In Indian history, he is known as Akbar the Great. Means widespread discontent यानी असंतोष एंड डिसऑर्डर की सिचुएशन की वजह से लोकल रूलर्स लोगों के बीच अनपॉपुलर हो गए. इन सिचुएशंस का फ़ायदा उठाते हुए बाबर ने इंडिया पर अटैक किया और इंडिया में मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन रखी. बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, बट मुग़ल एम्पायर की रियल ग्लोरी उस टाइम पीक पर थी जब हुमायूं का बेटा अकबर मुग़ल रूलर बना. इंडियन हिस्ट्री में उन्हें अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मुग़ल एम्परर. डियर स्टूडेंट्स, let's discuss about the first Mughal emperor Babur. He ruled from 1526 to 30 CE. The full name of Babur was Jahiruddin Muhammad and popularly known as Babur, that is a tiger. He was the grandson of Temur and descendant of Turkish ruler Genghis Khan. Genghis Khan had also invaded India several times, but Babur was the most successful Turkish invader in India.
Babur was a brave soldier, experienced general, skilled horse rider, sure shooter, and skilled sportsman. These qualities of Babur made him a magnificent ruler. When he became the ruler of Kabul, he occupied Ghazni and Samarkand. बाबर जो कि फर्स्ट मुगल एम्पर थे, उन्होंने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रूल किया। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था और पॉपुलरली बाबर के नाम से वो जाने जाते थे, विच मीन्स अ टाइगर। वह तैमूर के ग्रैंडसन और यू कैन से तैमूर के पोता और चंगेज़ खान का वंशज था। चंगेज़ खान ने भी कई बार इंडिया पर अटैक किया, बट बाबर इंडिया में सबसे सक्सेसफुल जो है वो टर्किश इन्वेडर था, मीन्स सबसे सफल आक्रमणकारी था। बाबर एक ब्रेव सोल्जर, एक्सपीरियंस जनरल, स्किल्ड हॉर्स राइडर, श्योर शूटर एंड स्किल्ड स्पोर्ट पर्सन भी था। यानी बाबर एक कुशल घुड़सवार, सुनिश्चित निशानेबाज और एक जो है अच्छा तलवारबाजी भी था, तीरंदाजी भी करता था। बाबर की इन क्वालिटीज़ ने उसे एक शानदार रूलर बना दिया। जब वह काबुल का रूलर बना तो उसने गजनी और समरकंद को भी अपने कब्जे में कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, बाबर फेल्ड टू ब्रिंग समरकंद परमानेंटली अंडर हिज कंट्रोल, so he gave up his idea of expanding his empire in Central Asia. Now he headed towards India because of political instability, disorders and the fabulous wealth of India. बाबर समरकंद को परमानेंटली अपने कंट्रोल में नहीं रख सका और वो फेल हो गया। सो उसने सेंट्रल एशिया में अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने का आइडिया ही छोड़ दिया। अब वह एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मीन्स राजनीतिक अस्थिरता, डिसऑर्डर्स यानी अव्यवस्था और इंडिया की ग्रेट वेल्थ से अट्रैक्ट होकर इंडिया की ओर चल पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन बाबर अटैक इंडिया, देन द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज इब्राहिम लोदी। He defeated the army of Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat that was fought in 1526 CE. This victory of Babur ended the power of the Afghans and boosted his economic security and influence. The wealth that he got in the victory distributed among the public and Afghan chiefs who had opposed him. This was the cleverness of Babur, and by this diplomacy he wanted to buy the confidence of public and the Afghan chiefs. यानी जब बाबर ने इंडिया पर अटैक किया तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना को हराया जो 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। बाबर की इस विक्ट्री ने अफगान्स की पार को समाप्त कर दिया और उसकी आर्थिक सुरक्षा और प्रभाव को बढ़ाया। इस जीत में जो भी उसे वेल्थ मिली यानी दौलत मिली वह जनता और अफगान चीफ्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई जिसने उनका विरोध किया था। और ये बाबर की क्लेवरनेस थी, यानी इस डिप्लोमेसी के कारण, इस डिप्लोमेसी के थ्रू वह जनता और अफगान चीफ्स का विश्वास जीत लेना चाहता था। डियर स्टूडेंट्स, बाबर वांटेड टू एस्टैब्लिश complete control over North India. For this, he had to defeat Rajputs. Babur and Rajputs met at fierce battle of Khanwa, and in this battle, Rana Sanga was defeated, who was the most powerful ruler of Mewar. This we have studied in previous chapter also. The defeat of Rana Sanga ended the power of the Rajputs. The students, Babur was not only an efficient military commander but also a learned scholar. He wrote Baburnama and or you can say Tuzuk-e-Babri in Turkish language. Baburnama described the important events related to Babur's life. यानी बाबर जो है
वो नॉर्थ इंडिया पर पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहता था। इसके लिए उसे राजपूत्स को हराना था। बाबर और राजपूत खानवा की एक भयंकर लड़ाई में मिले और इस लड़ाई में राणा सांगा की हार हुई, जो मेवाड़ का सबसे पावरफुल रूलर था। राणा सांगा की हार ने राजपूत की पार को समाप्त कर दिया। बाबर न केवल एक एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर था, बल्कि एक अच्छा स्कॉलर यानी विद्वान भी था। उन्होंने टर्किश लैंग्वेज में बाबरनामा या तुजुक बाबरी लिखी। बाबरनामा में बाबर की लाइफ से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुगल रूलर आफ्टर बाबर वाज द हुमायूं। ही वाज द eldest son of Babur. His complete name was Nasiruddin Muhammad Humayun. When he got throne after Humayun, he faced a large number of difficulties to retain the Mughal Empire in India. Babur had gifted separate provinces to his other three sons. The army of Babur was a combination of people from different countries and language groups. हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और उनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। जब वह हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठा तो उसे इंडिया में मुगल एम्पायर को बनाए रखने के लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। बाबर ने अपने 3 सन्स को सेपरेट यानी अलग अलग प्रोविंसेस गिफ्ट किए थे और बाबर की आर्मी में डिफरेंट कंट्रीज और लैंग्वेज ग्रुप के लोग थे। डियर स्टूडेंट्स, एज हुमायूं गॉट थ्रोन ही हैड इनहेरिटेड एन एम्प्टी ट्रेजर. He also had to face opposition from his brothers, relatives, Afghans and Rajputs. He did some foolish which increased his problem. Humayun was addicted to opium. He did not had military abilities. His father was not successful to crush the Afghan forever. Sher Shah Suri, who was an Afghan, defeated the Humayun at Chausa and Kannauj. He was forced to leave India. He took refuge in Iran 1540. यानी जब हुमायूं को सिंहासन मिला तो उसे खाली खजाना मिला था। उसे अपने ब्रदर्स, रिलेटिव्स, अफगान्स और राजपूत्स के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उसने कुछ मूर्खता की जिससे उसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हुमायूं अफीम लेने का एडिक्टेड था। उसके पास मिलिट्री एबिलिटी नहीं थी और उनके फादर अफगान्स की पार्कों को चलने में सक्सेस नहीं हुए। शेरशाह सूरी, जो कि एक अफगान था, उसने चौसा और कन्नौज में हुमायूं को हराया। उन्हें इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने 1540 में ईरान में शरण ली। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 15 years, हुमायूं अगेन अटैक अफगान रूलर सिकंदर सूरी. He defeated Sikandar Suri, who was a weak successor of Sher Shah Suri. After the defeat of Sikandar Suri, he restored the Mughal Empire in India once again. But unfortunately, he died after slipping from the steps of his library building at Delhi. In 15 years के बाद हुमायूं ने फिर से अफगान रूलर सिकंदर सूरी पर अटैक किया और उसने सिकंदर सूरी को हराया, जो कि शेर शाह सूरी का एक बहुत ही वीक सक्सेसर था। सिकंदर सूरी की हार के बाद उन्होंने इंडिया में मुगल एम्पायर को रिस्टोर कर लिया, मीन्स फिर से एस्टेब्लिश कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर से वो स्लिप हो गए और उनकी डेथ हो गई। लेट्स नो अबाउट शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी was the most important Afghan ruler. The rulers of Bihar gave him the title of Sher Khan. Gradually he brought Bihar and Bengal under his control by defeating Humayun at Chausa. He took the title of Sher Khan and established
most efficient administration in India under amirs in provinces. He also built a strong army. He also ordered land assessment of all cultivable land. He encouraged trade, education, construction of roads, inns, etc. The most famous road built by Sher Shah Suri was Grand Trunk Road from Calcutta to Delhi, which is also known as Sher Shah Suri Marg. Sher Shah Suri also known as the forerunner of Akbar. यानी शेर शाह सूरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अफगान रूलर थे. बिहार के रूलर ने उन्हें शेर शाह का टाइटल दिया. धीरे धीरे उसने हुमायूं को चौसा में हराकर अपने कंट्रोल में बिहार और बंगाल लाया. उन्होंने शेरशाह की उपाधि मिली और अमीर्स के प्रोविंसेस में एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया. उसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी बनाई. उन्होंने सभी कल्टिवेबल लैंड का असेसमेंट करने का भी ऑर्डर दिया. उन्होंने ट्रेड, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और सराय को भी एनकरेज किया. शेर शाह सूरी के थ्रू कंस्ट्रक्ट सबसे फेमस रोड कलकत्ता में शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है और शेर शाह सूरी को अकबर के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है. So, dear students, today in this module we have studied how Babur founded Mughal Empire in India, and we have discussed in detail about Babur and Humayun. Thank you. Stay blessed. Stay happy.